Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to start a new chapter, that is chapter 13, Light, Reflection and Refraction at Spherical Surfaces. This chapter was requested by Monica Devangan. So let's start this chapter. In the previous chapter, we have learnt about the laws of reflection, refraction at plane surfaces. We also did some activities to observe the phenomena of refraction. Can the same laws be applied to understand reflection and refraction from spherical surfaces? We will try to discover the answer to the above question in this chapter. We shall also perform experiments involving spherical mirrors and lenses. देखिए हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़े थे. यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के लिए और उनसे हमको ये समझने में आसानी होगी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज जो हैं वो कहाँ अप्लाई होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स. Recall that in class 7th you have learned that the polishing the inside or outside of a hollow sphere turns out into a mirror. The inner surface of a hollow sphere is called a concave side and the outer surface is called a convex side. If the inner side is polished with silver, then we get a convex mirror. Alternatively, if the outer side of sphere is polished, then we get a concave mirror. ठीक है, देखिए अगर कोई ग्लास स्फीयर है उसको हम कट कर देते हैं दो साइड से, इस तरीके से कट कर देते हैं, और अगर हम उसमें इनर सरफेस पेंट कर देते हैं, ठीक है, इनर सरफेस पॉलिश कर देते हैं और एक साइड का आउटर सरफेस पॉलिश कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मिरर बन जाता है. जहाँ पर हमने इनर सरफेस पॉलिश किया वो आपका कन्वेक्स मिरर हो जाएगा और जहाँ पर हमने आउटर सरफेस पॉलिश किया वो आपका कनकेव मिरर हो जाता है. ठीक है. एक्टिविटी 1. टेकिंग a serving spoon made of stainless steel, bring the outer surface of spoon closer to your face and observe. Can you see the image of your face in the spoon? Is the image same as the one you see in a plane mirror, or is it different? Is the image inverted? Is the image bigger, smaller, or of the same size as the object, your face? Now observe the same characteristics of the image from the inner side of the spoon and might observe that the image is bigger or erect, non-inverted. Now slowly increase the distance of a spoon from your face. Maybe you will now observe that the image is inverted. You can repeat the experiment and try to observe the image formation of a pencil from the two sides of the spoon. देखिए आपको इस एक्टिविटी में क्या बोला है, आपको एक सर्विंग स्पून लेना है स्टेनलेस स्टील का, जिससे नॉर्मली जो हम लोग जिससे क्या है दाल वगैरह निकालते हैं वो वाला स्पून लेना है. यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है और उसमें उस स्पून में अपना जो इमेज है उसको देखना है. ठीक है, स्टेनलेस स्टील का आपको ये स्पून लेना है. अब यहाँ पर आपको उसमें अपना फेस देखना है कि आपका फेस कैसा दिख रहा है. क्या आपने जो फेस देखा और जो आप प्लेन मिरर में जो फेस देखते हो वो दोनों सेम है, क्या वो डिफरेंट है, उल्टा है, क्या जो इमेज आपकी इस स्पून में बन रही है वो इन्वर्टेड इमेज है क्या, उल्टी है क्या, कि बहुत बहुत क्या वो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, किस साइज़ की है, या सेम साइज़ आपका जो फेस का साइज़ है उसी साइज़ में आपको आपका रिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है. इस तरीके से आपको देखना है. अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इमेज के उसको आपको मतलब सेम चीज़ें आपको क्या करनी है, एक बार आउटर साइड से देखना है और एक बार इनर साइड से देखना है. उसके बाद में फिर आपको ये सारी चीज़ें फिर से ऑब्जर्व करनी है. आप यही एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी भी पेन पेंसिल या कोई भी और चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं. Some important definitions related to spherical mirrors. The center of the reflective surface of a spherical mirror is called a pole, and this point is denoted by a letter P in diagrams. Pole is situated on the surface of the hollow sphere from which the mirror has been made. As you know, a spherical mirror is a polished part of a hollow sphere. Therefore, the center of the hollow sphere is called the center of curvature of the mirror.
and is denoted by diagrams. C is not a part of the surface of sphere. It lies outside the surface. The distance between C and P, which is also the radius of the hollow sphere, is called the radius of curvature of spherical mirror. It is denoted by R in diagrams. देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं. सबसे पहला है आपका पोल. ठीक है, पोल क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका जो आपका मिरर है उसका जो सेंटर है वो आपका पोल कहलाएगा. ठीक है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिव मिरर. जैसे कि ये आपका इसमें आपका ये पोल है. ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका ये वाला जो प्लेस है, ये जो पी लिखा है वो आपका पोल है. नेक्स्ट, पोल को हम पी से डिनोट करते हैं. डायग्राम्स में जब आप पी देखेंगे तो वो क्या है? शो कर रहा है आपको, पोल शो कर रहा है. ठीक है, अब देखिए स्फेरिकल मिरर क्या है? एक पॉलिश्ड पार्ट है हॉलो स्फीयर का, इसीलिए वहां पे उसका एक क्या होगा? मतलब एक स्फीयर है, वो एक स्फीयर से क्या किया गया है? इसको कट किया गया है. तो इसका तो जो स्फीयर है उसका सेंटर भी होगा. तो यहाँ पर जो सेंटर है इस स्फीयर का जो पूरा जो सेंटर है वो यहाँ पर सी है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. यहाँ पर भी इस स्फीयर का सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? जिसको हाँ, और आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसको सी से डिनोट करते हैं और ये हमेशा सरफेस के बाहर होता है. और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सी और पी के जो बीच का डिस्टेंस है उसे हम मतलब ये जो सी और पी का जो डिस्टेंस है वही आपका क्या है? रेडियस भी है आपके स्फीयर का. ठीक है, जिसको डायग्राम में आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, तो ये क्या है? आपका आर से रिप्रेजेंट हो रहा है. The line passing through the center of curvature C and pole P is called the principal axis. It is perpendicular to the pole because any line through center of a circle is perpendicular to the circumference. The diagram respects the cross section of a spherical lens which is a circle. क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो लाइन पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, ठीक है, ये जो लाइन है वो उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है. और ये पोल के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, ये पोल के परपेंडिकुलर होती है और कोई मतलब जो भी लाइन सेंटर ऑफ सर्कल के परपेंडिकुलर है या सर्कमफ्रेंस में है, ठीक है, ये क्या है? आपका सर्कमफ्रेंस भी है. तो यही आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है. ये जो डायग्राम है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस का डायग्राम है जो कि एक सर्कल भी है. ठीक है, ये क्या किया गया है? आपको ये सर्कल को कट करके यहाँ पर आपका मिरर जो है वो बनाया गया है. ठीक है, another important location is the discussion of spherical mirror is the focus. To understand the concept of focus, let's perform an activity. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको जाननी है वो है फोकस. फोकस जानने के लिए, फोकस का कॉन्सेप्ट जानने के लिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. टेक अ कनकेव मिरर एंड place it so that the reflective surface is facing towards the sun. The light coming from sun gets reflected from the mirror. We will try to obtain the reflected light on a piece of paper. Place a paper in front of mirror and adjust its position till a very sharp, bright point is seen. This is the image of sun formed from the mirror and obtained on the paper, which acts as a screen to obtain image. What will happen if this arrangement of paper and mirror is maintained for some time? देखिए आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है? आपको एक कनकेव मिरर लेना है जिसमें जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है उसको सन के तरफ रखना है. ठीक है, सन के तरफ रखना है. उसके बाद में उसमें जो लाइट्स सन के थ्रू जो लाइट्स आएंगी मिरर में जो रिफ्लेक्ट होंगी, उसके बाद हमको उसमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्टेन करना है जो रिफ्लेक्टेड लाइट है. ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिरर को बीच सन के तरफ रख रहे हैं और फिर उसमें से, ठीक है, जब मिरर रखाया है आपका, सन वहां पर लाइट पड़ रही है, सन की लाइट, उसके बाद में उस मिरर में से क्या होगा? एक छोटी सी लाइट निकलेगी. उस लाइट में आपको क्या करना है? पेपर को रखना है. कुछ टाइम तक पेपर को रखना है और उस जो मिरर का जो पोजीशन है उसको एडजस्ट करके रखना है और एक काफी देर तक आपको उस पेपर में वो पॉइंट को रखना है. ठीक है, वहां पर क्या होगा? आपका सन का जो इमेज है वो फॉर्म होगा. ठीक है, टुवर्ड्स द formed from the mirror obtained on the paper. मतलब जो सन का इमेज है मिरर के थ्रू उसी पॉइंट पे क्या होगा? फॉर्म होगा. तो यहाँ पर क्या कर रहा है? पेपर जो है वो
एक स्क्रीन के तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है। The image of the sun formed has been obtained on a screen outside mirror, so it is real image. The point at which the image is obtained is called the focal point of the mirror. As you can see, the focal point lies outside the mirror. The focal point is indicated in diagrams by the letter F. ठीक है, अब देखिए जो इमेज फॉर्म हुआ है सन का, ठीक है, जो इमेज यहाँ पर क्या है, पेपर में फॉर्म हुआ है सन का, और मिरर के आउटसाइड फॉर्म हुआ है, तो ये क्या है, आपका एक रियल इमेज है, ठीक है। वहीं पर जो पॉइंट है जहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ है, जहाँ पर हमको इमेज मिला है, वो यहाँ पर फोकल पॉइंट है उस मिरर का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो फोकल पॉइंट है वो मिरर के आउटसाइड हमको मिल रहा है, ठीक है। तो जो फोकल पॉइंट है, ठीक है, मिरर के आउटसाइड हमको मिल रहा है, और ये जो फोकल पॉइंट है वो डायग्राम में आपको कैपिटल F से रिप्रेजेंट होता है। In the case of concave mirror, light rays coming parallel to principal axis converge the reflection of the focal point. In the case of convex mirror, rays coming parallel to principal axis appear to be coming from the focal point. The image formed in case of a convex mirror cannot be obtained on screen and is called a virtual image. देखिए, जब हम कनकेव मिरर की बात करेंगे तो जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो क्या करेंगी, फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे, मतलब एक पूरे तरीके से फोकल पॉइंट के ऊपर में फोकल पॉइंट में आ जाएंगी। और वहीं पर कन्वेक्स मिरर के केस में जो रेज आ रही हैं पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रही हैं, वो यहाँ पर फोकल पॉइंट की तरफ अपीयर होंगी, ठीक है, अपीयर होंगी। जो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रहा है कन्वेक्स मिरर में, वो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं हो सकता, इसीलिए इसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कनकेव मिरर में जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, ठीक है, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो यहाँ पर फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। और वहीं पर जब अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो रेज जो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर में वो अपीयर होंगी, मतलब कि वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से टकराएगा और चले जाएगा, लेकिन यहाँ पर फोकल पॉइंट की तरफ अपीयर होगा, ठीक है। बैकवर्ड जब हम इसको खींचेंगे तो यहाँ पर जो लाइन्स है उसको जब हम खींचेंगे तो फोकल पॉइंट की तरफ अपीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है कन्वेक्स मिरर पे, वो यहाँ पर स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं हो सकता, इसीलिए वो क्या है, एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है। The distance between pole P and focal length of a spherical mirror is called the focal length of the mirror and is denoted by small f, ठीक है। जो पोल P और फोकल पॉइंट है, ठीक है, जो पोल P, ये पोल P और जो आपका फोकल पॉइंट है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, वो आपका फोकल लेंथ होता है और इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। The boundary of the curved surface of a spherical mirror is called its aperture. In figure 2, mm represents the aperture of the सरफेस, ठीक है। जो बाउंड्री है कर्व्ड सरफेस, मतलब जो स्फेरिकल मिरर का जो बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है, अपेरेचर कहा जाता है। फॉर मिरर्स विद स्मॉल अपेरेचर द फोकल लेंथ f इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैथमेटिकली r इज इक्वल्स टू 2f। इन अदर वर्ड्स, फॉर स्मॉल अपेरेचर मिरर्स द फोकल पॉइंट is the midpoint of the line joining the center of its curvature C and pole P, ठीक है। ऐसे मिरर जिनका जो अपेरेचर है वो स्मॉल है, मतलब जिनका पूरा जो रेडियस है, जिनका जो सर्कम्फ्रेंस है वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है, तो उसका जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा। अगर मैथमेटिकली हम देखेंगे तो कैपिटल R क्या होगा, तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2f होता है। उसी दूसरे वर्ड्स में जो फोकल लेंथ है वो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। थैंक यू।